But now, I must tell you, it's very difficult for them because it's not in their curriculum. Their curriculum is different from the curriculum which people want. Bharat Jodo Yatra has ensured that the curriculum is decided by the people. जो पाठ्यक्रम होता है, अब वो पाठ्यक्रम जनता तय करेगी, यह भारत जोड़ो यात्रा ने सुनिश्चित कर दिया। पाठ्यक्रम अब नागपुर से नहीं बन सकता, पाठ्यक्रम अब पार्टियों के हेडक्वार्टर से नहीं बन सकता, पाठ्यक्रम सड़कों और गलियों और गांवों और ढाणियों से बनेगा। यह निश्चित किया भारत जोड़ो यात्रा ने। In this last 1 year, you've also seen another historic election that took place within our party, and Mr. Mallikarjun Kharge became the president of our party. A very historic moment again. I'm recounting the history of the run-up to this CWC because it's as important as the CWC. No other party in this country has had this kind of an open election. We are very proud of our tradition of this, electing our president through an open election. No other party has done it. So that's another historic milestone that we achieved in this last 1 year. So when we meet today, in a few hours from now in the CWC, there will be an open discussion. Everybody is free to voice his or her opinion, suggestion, criticism. That's the way our party functions. That's the way the blood in the veins of our party stays fresh and boiling. पिछले 1 साल में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हुई जो किसी और पार्टी में ऐसी उपलब्धि नहीं हो सकती है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी में हो सकती है। हमारी पार्टी के भीतर चुनाव हुआ और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अध्यक्ष चुने गए। ये एक मील का पत्थर है। पार्टी के अंदर लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, ये उदाहरण हमने पूरे देश में हर राजनीतिक पार्टी के सामने रखा है। आज कुछ घंटों बाद जब हम कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में बैठेंगे तो खुले मन से जिसको जो चर्चा करनी है, जिसको जो सुझाव देना है, जिसको जो अपनी बात और अपना मंतव्य रखना है, वो रख पाएंगे। ये हमारी पार्टी का लोकतंत्र है। इस तरीके से इस पार्टी की धमनियों में जो रक्त है, जो खून है, वो गर्म रहता है, उसमें उबाल रहता है, वो बहता रहता है और वो जीवन की संचार करता रहता है। ये अंतर है हमारी पार्टी और अन्य पार्टियों में। शाम को आपको जानकारी भी दी जाएगी कि क्या क्या निर्णय लिए गए, किसने क्या कहा, कितना महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हुई। वो तमाम बातों पर शाम को आपसे फिर हम मुखातिब होंगे, आपसे बात करेंगे। इन द इवनिंग वील अप्राइज यू ऑफ ऑल द deliberations, the developments of the day, the resolutions, the decisions passed by the CWC. At every stage, we'll ensure that we keep you informed, and through you, we keep the country informed. The entire country today, India, is watching Hyderabad. They are interested in knowing what the Congress party has to say on the eve of these crucial elections. And we understand the responsibility on our shoulders. In all humility, we will ensure that we do justice to the aspirations and the expectations people have from us. Having said that, I think let's open the... you should ask your questions. Don't ask me anything about what we'll decide in the CWC. We don't know. It's a very democratic process. People will decide and we'll apprise you in the evening. Your questions, please. अब आप अपने सवाल पूछिए. CWC में क्या होना है वो शाम को आपको जरूर हम मुखातिब होकर बताएंगे. उसके अलावा और कुछ पूछना है तो पूछिए. You take a mic.
Sir, 14 anchors have been banned by the India bloc. Also, BJP is targeting and saying that if Congress has to rise, they should ban Rahul Gandhi. How do you see the statement coming, sir? I do not agree with the word you've used. We have not banned anyone. We have not boycotted anyone. We have not blacklisted anyone. This is a non-cooperation movement. We will not cooperate with anybody spreading hatred in the society. We are not stopping them from spreading hatred. You want to spread hatred? Go ahead, do it. You have a freedom to do it. We also have a freedom not to be partners in that crime. They are not our enemies. We do not hate any of these friends of ours in the media. They may have their compulsions. And nothing is permanent. If tomorrow they realize that what they were doing is not good for India, not good for the society, believe me, we are all together in this. We'll again start attending their shows. So do not call it a ban. हिंदी में इसको हम सविनय अवज्ञा कह सकते हैं, इसको हम असहयोग आंदोलन कह सकते हैं. हम तो गांधीवादी तरीकों से सिर्फ अपने आप को उस रास्ते से अलग कर रहे हैं. अगर मैं एक रास्ते पे रोज चलता हूं और कोई मुझ पर कचरा फेंकता रहता है तो मैं अपना रास्ता बदलने की स्वतंत्रता रखता हूं. मैं सिर्फ वो स्वतंत्रता को एक्सरसाइज कर रहा हूं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हम लोग. तमाम दलों ने जो कि इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, उन सब ने सर्वसम्मति से माना कि ये रास्ता हमें अपना बदलना होगा. इस रास्ते पे चलकर हम इस पाप का भागीदार नहीं बनेंगे. इसलिए इसको आप बैन मत कहिए, इसको आप बॉयकॉट मत कहिए, इसको आप ब्लैकलिस्ट मत कहिए. ये सविनय अवज्ञा है. पवन जी, सुरेखा बोल रही हूँ मैं इंडिया टीवी से. अग्निवीर योजना और 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर जो है राहुल गांधी जी का जो लद्दाख में एक वीडियो आया है, वायरल हुआ है, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. और खासकर बीजेपी और विपक्षी पार्टियां भी ये कह रही है कि जिस तरीके से ये जो कुछ कहा गया है, इसमें उन्हें पॉलिटिकल पार्टी के मनोबल को गिराने की बात बार बार की जा रही है और देश को बेचने के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं. तो इस तरीके मनोबल कब गिरता है सेना का? मैं बताता हूं. सेना का मनोबल तब गिरता है जब एक तरफ हमारे जवान शहीद हो रहे हों और दूसरी तरफ जश्न मनाया जा रहा हो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, प्रधानमंत्री के ऊपर गुलाब के फूल और पंखुड़ियां फैलाए जा रहे हों, गिराए जा रहे हों, फेंके जा रहे हों. तब मनोबल गिरता है. आप फौज के नाम पर वोट मांगने में नहीं शर्माते हो, लेकिन जब हमारे जवान शहीद हो रहे होते हैं तो एक शब्द ट्वीट नहीं कर पाते प्रधानमंत्री, तब मनोबल गिरता है. जो राहुल गांधी ने कहा वो तमाम रिटायर्ड जवान हमारी वही बात कह रहे हैं. हमारा एक स्टेटमेंट कर्नल रोहित चौधरी, जो हमारे एक्स सर्विसमैन सेल के अध्यक्ष हैं, वो थोड़ी देर में अब रिलीज करने वाले हैं उस पर. और आप स्वयं देखेंगे जितने वेटरन्स हैं वो राहुल जी की इस बात से सहमत हैं. तो हम सरकार से यह आग्रह करते हैं, मनोबल मत गिराइए सेना का. जब आप चीन को क्लीन चिट देते हैं ना, कि ना कोई घुसा, ना कोई आया, ना कोई घुसा हुआ है, तब आप सेना का मनोबल गिराते हैं. बहादुर सैनिक हमारे लड़ने को तैयार हैं, जांबाज सैनिक हैं, लड़ते हैं, शहीद भी होते हैं. लेकिन यहां बैठकर दिल्ली में जब आप उनका मनोबल गिराते हो और दुश्मन को क्लीन चिट देते हो, वो हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा.